السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ آصب نگر کا جادوگر۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ملک تاران پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام ارسلان تھا، جو اپنی رعایا سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کے ہر دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتا۔ بادشاہ کی سخاوت، انصاف پسندی اور محبت کی وجہ سے رعایا بھی اپنے بادشاہ پر جان چھڑکتی تھی اور اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ نور بخت، جو اپنے باپ کی طرح بے حد نیک اور مظلوموں کی مدد کرنے والا تھا۔ شہزادہ نور بخت کو سیر و سیاحت اور جنگل میں شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرتے ہوئے بھی وہ اپنے ملک کی رعایا کی پوری خبر رکھتا تھا۔ اسے جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو وہ اسی وقت اس کی مدد کو پہنچ جاتا اور ہر ممکن طریقے سے اس کے کام آنے کی کوشش کرتا۔ شہزادہ نور بخت عموماً رات کے وقت رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلتا تھا، اور وہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ بھیس بدل کر جاتا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں پر شہزادہ ہونے کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی شہرت کا بھوکا تھا۔ وہ تو یہ نیک کام رعایا کی خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تھا۔ اس روز بھی شہزادہ نور بخت ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک غریب آبادی سے گزر رہا تھا جہاں کچے پکے مکان بنے ہوئے تھے۔ اس وقت اچھی خاصی رات ہو رہی تھی۔ شہزادہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز گو کہ بے حد ہلکی اور دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر چیخ میں اس قدر قرب اور درد تھا کہ شہزادہ نور بخت کے قدم خود ہی رک گئے۔ وہاں دور تک اسے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہزادہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی کہ اسی لمحے وہی چیخ اسے پھر سنائی دی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ اوہ، یہ تو کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز ہے، شہزادہ نور بخت بڑبڑایا۔ پھر تیزی سے اس طرف قدم اٹھانے لگا جس طرف سے اسے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہاں مکان ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور شہزادہ نور بخت نے چیخ کی آواز ایک چھوٹے سے مکان سے آتی ہوئی سنی تھی، اس لیے وہ تیزی سے اسی مکان کی طرف آیا تھا۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا، مگر اس مکان میں بالکل خاموشی تھی، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ شہزادہ نور بخت بالکل خاموش تھا۔ اس کے کان مکان کے دروازے پر لگے ہوئے تھے کہ اس بار جیسے ہی اسے دوبارہ چیخ سنائی دے وہ اس مکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے نیفے میں اڑسے ہوئے خنجر کے دستے پر جمع ہوا تھا۔ میری بات مان جاؤ شہزادی عکاشہ، اور مجھے شہزادہ جان جبوٹ کے سنہری بت کا پتہ بتا دو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مکان میں سے شہزادہ نور بخت کو ایک بھاری بھرکم اور کرخت آواز سنائی دی اور شہزادہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ شہزادی عکاشہ، اس ٹوٹے پھوٹے اور کچے مکان میں؟ شہزادہ نور بخت نے حیرت زدہ نظروں سے کچے مکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بازارٹ جادوگر، تم چاہے کوڑے مار مار کر میری کھال بھی ادھیڑ دو، میں تب بھی تمہیں شہزادہ جان جبوٹ کے بت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس بار شہزادہ نور بخت کو ایک زنانہ اور نہایت سریلی آواز سنائی دی۔ آواز میں بے پناہ دکھ ہونے کے ساتھ ساتھ انکار کی سختی بھی تھی۔ جس طرح میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے اسی طرح میں اپنی جادو کی طاقت سے شہزادہ جان جبوٹ کے سنہری بت کو بھی ڈھونڈ لوں گا۔ تم میری طاقتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں شہزادہ جان جبوٹ کے سنہری بت کی تلاش میں پاتال کی آخری تہ میں بھی جا سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی اسے میرے حوالے کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بازارٹ نامی جادوگر کی غضبناک آواز آئی، تم پاتال کی آخری تہ میں تو کیا آسمان کی وسعتوں میں بھی چلے جاؤ، تب بھی تم شہزادے جان جبوٹ کے سنہری بت کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اور بازارٹ جادوگر، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم خود کبھی اس کے بت کو تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ جب تک شہزادہ جان جبوٹ کا سنہرا بت میں خود تمہارے حوالے نہیں کر دیتی اس وقت تک وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وہ تمہارے لیے بے جان مجسمہ ہی رہے گا، کیونکہ اس وقت اس بت پر میرا قبضہ ہے، اور جب تک اس بت پر سے میرا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک تم نہ اس سے کوئی کام لے سکتے ہو اور نہ ہی تم اسے زبردستی مجھ سے حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادی عکاسہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور شہزادہ نور بخت کو جواباً بازارٹ جادوگر کی غراہٹ سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے تم اس سنہرے بت کے متعلق بہت کچھ جان چکی ہو۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔
अब तो वाकई मैं कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। मैं तुम्हें उस वक्त तक मारता रहूंगा जब तक तुम सुनहरे बुत को मेरे हवाले नहीं कर देती। बाजाट जादूगर ने निहायत खौफनाक अंदाज में चीखते हुए कहा और फिर शड़ाक की आवाज के साथ शहजादी अक्काशा की तेज और कुर्बनाक चीख उभरी, जैसे बाजाट जादूगर ने वाकई किसी कोड़े से शहजादी अक्काशा को पीटा हो। और फिर मुसलसल कोड़े बरसाने और शहजादी अक्काशा की चीखों से मकान गूंजने लगा। अब तो शहजादा नूर बख्त से रहा न गया। उसने एक झटके से नेफे से अपना खंजर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने दरवाजे पर जोर से पांव मारा। दरवाजा शायद वैसे ही बंद था। शहजादा नूर बख्त की जोरदार लात मारने की वजह से दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया और शहजादा तेजी के साथ मकान में दाखिल हो गया। रुक जाओ बाजाट जादूगर, अगर तुमने शहजादी अक्काशा को और मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने मकान में दाखिल होकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा, मगर खाली मकान को देखकर वो ठिठक कर रह गया। सहन के सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था, मगर वो कमरा भी उसे बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। उस वक्त चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। शहजादा तेजी से कमरे की तरफ गया, मगर कमरा भी बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, एक छोटा सा चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मकान का एक सहन और एक ही कमरा था जो भाए भाए कर रहा था, और शहजादा नूर बख्त हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने शहजादी अक्काशा और बाजाट जादूगर की आवाजें अपने कानों से सुनी है, मगर ये मकान तो यूं खाली है जैसे कभी यहाँ कोई चिड़िया का बच्चा भी ना आया हो। शहजादा नूर बख्त के मुंह से इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में निकला, शहजादी अक्काशा, बाजाट जादूगर, कहाँ हो तुम? उसने कुछ सोचकर शहजादी अक्काशा और बाजाट जादूगर को आवाजें दी, मगर जवाबन उसे कोई आवाज सुनाई ना दी। अब तो शहजादा नूर बख्त की पेशानी पर परेशानी के साथ साथ कदरे खौफ भी उभर आया। वो चंद लम्हे वहां रुका रहा, फिर कुछ सोचकर तेजी से वहां से निकलता चला गया। मकान से बाहर आकर उसने कुछ सोचकर एक दूसरे करीबी मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा बाहर आ गया। उसके हाथ में लालटेन थी। वो लालटेन ऊंची करके उसकी रोशनी में चुंधियाई हुई आंखों से शहजादा नूर बख्त की जानिब देखने लगा। शहजादा नूर बख्त ने उसे सलाम किया। कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने उसके सलाम का जवाब देते हुए हैरानी से पूछा। बाबा जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे आपके साथ वाले मकान में से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। कोई जालिम इंसान किसी मजलूम लड़की को जैसे कोड़ों से पीट रहा था। मैं उसका पता लगाने के लिए इस मकान में गया, मगर मकान बिल्कुल खाली था। क्या आप उस मकान के बारे में जानते हैं कि उसके मकीन कौन है और कहाँ है? शहजादा नूर बख्त ने मुख्तसर तौर पर उसे बताते हुए कहा। उसने दानिस्ता शहजादी अक्काशा, बाजाट जादूगर और शहजादा जान जबूट के सुनहरी बुत के मुतालिक उसे कुछ बताने से गुरेज किया था। ओह, तो तुम भी उस आसिबी मकान का शिकार हो गए? बेटा, यह मकान तो बरसों से इसी तरह खाली पड़ा है। इंसान तो इंसान, इस मकान में परिंदे भी अपना घोंसला बनाने से गुरेज करते हैं। रही चीखों की आवाजें, तो ये तो यहाँ का रोज का ही मामूल है। हर रोज इस मकान में से चीखें और मारपीट की आवाजें सुनाई देती हैं। शुरू में लोग खौफजदा भी हुए थे और तजस्सुस से मजबूर होकर मकान में भी गए, मगर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। चूँकि उस मकान से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, इसलिए लोगों का खौफ दूर हो गया। और जब चीखों और मारपीट की आवाज़ों का सिलसिला मामूल बन गया, तो लोगों ने उस मकान पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बूढ़े ने बताया, और उसकी बात सुनकर शहजादा नूर बख्त हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद यही वजह थी कि इस कदर चीखों की आवाज़ें सुनने के बावजूद भी किसी मकान का दरवाज़ा नहीं खुला था और ना ही किसी ने उस तरफ आने की कोशिश की थी। शहजादा नूर बख्त ने बूढ़े से मजीद कोई बात ना की और उसका शुक्रिया अदा करके वापस चल पड़ा। उसके जहन में मुसलसल शहजादी अक्काशा और बाजाट जादूगर की बातें गूंज रही थीं और बाजाट जादूगर के शहजादी अक्काशा पर बरसाए जाने वाले कोड़े शड़ाक शड़ाक करके जैसे उसके अपने दिलो दिमाग पर बरस रहे थे। नजूमी बाबा, मैंने आपको सारी तफसील बता दी है। अब आप जल्दी जल्दी अपना हिसाब लगाएं और ये मालूम करें कि उस आसिबी मकान का क्या राज है। शहजादी अक्काशा कौन है और बाजाट नामी जादूगर उसे मार मार कर कौन से शहजादा जान जबूट के सुनहरे बुत के मुतालिक पूछ रहा था। उस सुनहरे बुत का क्या राज है और जादूगर उसे शहजादी अक्काशा से क्यों हासिल करना चाहता है।
शहजादा नूर बख्त ने अपने सामने बैठे हुए बूढ़े शाही नजूमी से निहायत बेचैन लहजे में पूछा। शाही नजूमी, जिसके सर के बाल, दाढ़ी और भौहें बर्फ की तरह सफेद थे, शहजादा नूर बख्त की बेचैनी देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपने थैले से स्लेट और स्लेटी निकाली और स्लेटी से स्लेट पर कुछ नंबर लिखने लगा। फिर उसने स्लेट पर आड़ी तिरछी लकीरें लगाना शुरू कर दी। शहजादा नूर बख्त गौर से उसकी जानिब देख रहा था। वो रात को सीधा महल में वापस आया था। अपने कमरे में आकर वो निहायत परेशानी के आलम में शहजादी अक्काशा और बाजार जादूगर के मुताल्लिक सोचता रहा था, जिसकी वजह से वो रात को एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। सुबह होते ही उसे शाही नजूमी का ख्याल आया तो उसने एक मुहाफिज से कहकर शाही नजूमी को अपने पास बुला भेजा और कुछ ही देर में शाही नजूमी वहां आ गया था। शहजादा नूर बख्त ने शाही नजूमी को रात वाले वाक़े की पूरी तफसील बताई और उससे कहा कि वो अपने इल्म नजूम से उस पुरअसरार और हैरत अंगेज वाक़े की हकीकत मालूम करे। बूढ़ा नजूमी काफ़ी देर तक स्लेट पर गिनती लिखता रहा, आड़ी तिरछी लकीरें बनाता मिटाता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर स्लेट और स्लेटी नीचे रख दी। उसके चेहरे पर निहायत संजीदगी थी। क्या बात है नजूमी बाबा, आप खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? शहजादा नूर बख्त ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। शहजादा हुजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, बूढ़े शाही नजूमी ने डरते डरते लहजे में कहा और शहजादा नूर बख्त चौंक पड़ा। ओह, तो क्या कोई खास बात है? आप मुझसे जान की अमान मांग रहे हैं नजूमी बाबा? शहजादा नूर बख्त ने हैरानी से पूछा। जी हाँ शहजादे हुजूर, बहुत ही खास बात है, इसलिए मैं आपसे अपनी जान की अमान मांग रहा हूँ, बूढ़े शाही नजूमी ने जवाब दिया। ठीक है, आपको जान की अमान दी जाती है, फरमाइए क्या बात है? शहजादा नूर बख्त ने कदरे परेशान होकर कहा। शहजादा हुजूर, आप इस मामले से खुद को दूर ही रखें तो बेहतर होगा। शहजादी अक्काशा, बाजार जादूगर और शहजादा जान जबूट के सुनहरी बुत के मुताल्लिक अगर मैंने आपको हकीकत से आगाह किया तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए, शाही नजूमी ने कहा। और शहजादा नूर बख्त बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या कहा? मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे? उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। जी हाँ शहजादे आलम, ये एक आसिबी चक्कर है और अगर इस आसिबी चक्कर के राज से मैंने आपको आगाह कर दिया तो बहुत से आसिब आपके पीछे पड़ जाएंगे और आप हर हाल में उस आसिबी चक्कर के गिरदाब में फंस जाएंगे, जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है, शाही नजूमी ने संजीदगी से कहा। और शहजादा नूर बख्त हैरानी से उसका चेहरा तकने लगा। आपके कहने का ये मतलब तो नहीं कि शहजादी अक्काशा और बाजार जादूगर इंसान नहीं बल्कि आसिबी मखलूक हैं? उसने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में पूछा। आप ठीक समझे हैं शहजादे आलम, शहजादी अक्काशा आसिब शहजादी है और बाजार जादूगर भी आसिब की दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक आसिब जादूगर है। ये उनकी अपनी दुनिया का मामला है, वो इससे खुद ही निपटते रहें तो बेहतर है। किसी इंसान की मुदाखलत उस इंसान की मौत का भी मौजब बन सकती है, शाही नजूमी ने कहा। और शहजादा नूर बख्त सर हिलाने लगा और गहरी सोच में डूब गया। नजूमी बाबा, जुल्म किसी इंसान पर हो, जानवर पर हो, जिन्नों भूतों या आसिबों पर हो, जुल्म जुल्म ही होता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर किसी पर जुल्म होता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाजार जादूगर शहजादी अक्काशा पर जुल्म कर रहा था। वो किसी शहजादा जान जबूट के बुत के हुसूल के लिए आसिबी शहजादी अक्काशा पर कोड़े बरसा कर उसे बेपनाह अजियतें दे रहा था। शहजादी अक्काशा की अजियत भरी चीखें मैंने खुद सुनी थी। वो जाने कब से उस मजलूम शहजादी पर जुल्म कर रहा था, इसलिए मैं उस शहजादी की मदद को जरूर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जिन्नात की दुनिया में जाना पड़े या आसिब की दुनिया में। उसे जुल्म से बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान से भी क्यों ना हाथ धोना पड़े, मैं उस शहजादी को आसिब जादूगर से जरूर निजात दिलाऊंगा। इसलिए आप मुझे उनके बारे में सारी तफसील बता दें, शहजादा नूर बख्त ने फैसलाकुन लहजे में कहा। जो हुक्म शहजादे हुजूर। शाही नजूमी चंद लम्हे गौर से शहजादी की तरफ देखता रहा, फिर उसने इकरार में सर हिलाया और फिर यूं गोया हुआ। शहजादा हुजूर, जिस तरह इस रुए ज़मीन पर इंसानों और जिन्नात की दुनिया आबाद है, उसी तरह इस ज़मीन के एक सिहा खित्ते पर आसिब की दुनिया भी मौजूद है, जहाँ इंसानों की तरह कौम आसिब भी रहती है। इस सिहा खित्ते पर आसिब बादशाह की हुक्मरानी है, जिसका नाम काला बादशाह है। काले बादशाह की एक बेटी है शहजादी अक्काशा।
शहजादी अक्काशा की शादी कुछ अरसा कबल जिन्नात के आसिफ के शहजादा जान जबूट से की गई थी, जिसका आसिफ जादूगर को बेहद गुस्सा था। असल में आसिफ जादूगर की एक बेटी है जिसका नाम जबूती था। वो शहजादा जान जबूट को बेहद पसंद करती थी और खुद आसिफ जादूगर भी यही चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जिन्नात के आसिफ शहजादे से हो, ताकि वो एक बहुत बड़ा और नाकाबिल तस्खीर आसिफ जादूगर बन जाए। जिन्नात का आसिफ शहजादा जबूती से सख्त नफरत करता था, क्योंकि एक तो वो बेहद बदसूरत थी, दूसरे वो बेहद बदमिजाज और ख़तरनाक जादूगरनी थी। जब शहजादा जान जबूट ने शहजादी अक्काशा से शादी कर ली तो आसिफ जादूगर के साथ साथ उसकी बेटी जबूती को भी शहजादा जान जबूट पर बेपनाह गुस्सा आया। जबूती, जो खुद भी जादू जानती थी, गजबनाक होकर शहजादी अक्काशा को हलाक करने के लिए निकल खड़ी हुई। उसने शहजादी अक्काशा को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जिन्नात के शहजादे ने उसका भरपूर मुकाबला किया और उसने अपनी ताकतों से जबूती को हलाक कर दिया। जबूती से लड़ते हुए शहजादा जान जबूट बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसकी ताकतें भी कम हो गई थीं। शहजादी अक्काशा भी कुछ हद तक जादू जानती थी। उसे मालूम हो गया कि शहजादा जान जबूट जिस कदर जख्मी है, अगर बर वक्त उसकी मदद ना की गई तो वो हलाक हो सकता है, और चौके शहजादे जान जबूट ने जबूती को हलाक कर दिया है। इसलिए जबूती का बाप बाजार जादूगर शहजादे से इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने शहजादे जान जबूट को अपने जादू के जोर से सुनहरे रंग के एक बुत में तब्दील कर दिया और उसे लेकर आसिफ की दुनिया से बाहर आ गई। वो इंसानी दुनिया में एक वीरान मकान में आ छुपी थी, ताकि बाजार जादूगर उस तक कभी न पहुंच सके। इंसानी दुनिया में उसे 40 बरस तक रुकना था, ताकि शहजादा जान जबूट के न सिर्फ जख्म ठीक हो जाएं, बल्कि उसकी कुव्वतें भी लौट आएं। तब वो वापस अपनी दुनिया में जाएगी। लेकिन उसे यहाँ आए हुए अभी 1 बरस भी ना हुआ होगा कि बाजार जादूगर उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आन पहुँचा। उसके इंसानी दुनिया में आने की खबर शहजादी अक्काशा को पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने शहजादा जान जबूट के सुनहरी बुत को कहीं छुपा दिया। बाजार जादूगर ने शहजादी अक्काशा को पकड़ लिया। वो अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए शहजादा जान जबूट को हलाक करना चाहता था। उससे शहजादी के बुत को हासिल करने के लिए वो शहजादी अक्काशा पर जुल्म करने लगा, मगर शहजादी अक्काशा उसका जुल्म बर्दाश्त कर रही है। वो किसी भी तरह शहजादे का बुत जादूगर के हवाले करने पर तैयार नहीं हो रही। वो जानती है कि अगर उसने शहजादा जान जबूट का बुत आसिफ जादूगर के हवाले कर दिया तो वो बुत का तिलस्म खत्म करके शहजादे जान जबूट को हलाक कर देगा। शाही नजूमी शहजादा नूर बख्त को बताता चला गया। शहजादा नूर बख्त इंतहाई हैरानी और दिलचस्पी से शाही नजूमी की बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी उसे दरमियान में टोकने की कोशिश नहीं की थी। ओह, तो ये है असल कहानी। मगर नजूमी बाबा, शहजादी अक्काशा अगर जादू जानती है तो वो बाजार जादूगर का मुकाबला क्यों नहीं करती? शहजादा नूर बख्त ने पूछा। शहजादी अक्काशा बहुत कम जादू जानती है, जबकि बाजार जादूगर एक ताकतवर और निहायत खौफनाक जादूगर है, जिसका मुकाबला करना शहजादी अक्काशा के बस की बात नहीं है, शाही नजूमी ने बताया। और शहजादा नूर बख्त ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और नजूमी बाबा, आप कह रहे थे कि आसिफ दुनिया की बात सुनकर मैं भी उस मामले में मलूस हो जाऊंगा और उनसे मेरी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, शहजादा नूर बख्त ने पूछा। हाँ बेटा, अब तुम्हें हर हाल में जाकर शहजादी अक्काशा की मदद करना पड़ेगी, क्योंकि तुम उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुके हो। अगर तुम उसकी मदद को ना गए तो आसिफ दुनिया का काला बादशाह आसिफ मुहाफिजों को भेजकर तुम्हें आसिफी दुनिया में ले जाएगा, ताकि उनकी आसिफ दुनिया की ये पुरस्कार कहानी हमेशा हमेशा के लिए दूसरे इंसानों से पोशीदा रहे, बूढ़े नजूमी ने बताया। और शहजादा नूर बख्त हैरान रह गया। ये क्या बात हुई? इस तरह तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे पहले सितारों के इल्म से ये कहानी आप ही को मालूम हुई थी, शहजादे ने कहा। जाहिर है वो मुझे भी आसिफ की दुनिया में ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो मुझे हलाक करने की कोशिश करें, शाही नजूमी ने सर हिलाकर कहा। ओह, फिर तो ये बहुत ही गलत बात हुई। फिर इसका क्या हल हो सकता है? शहजादा नूर बख्त ने परेशान होकर पूछा। इसका एक ही हल है, और वो ये कि आप अब शहजादी अक्काशा की मदद करें और उसे बाजार जादूगर की कैद से रिहाई दिलाएं और बाजार जादूगर को जाकर हलाक कर दें, उसने कहा। और शहजादा नूर बख्त सोच में पड़ गया। मैं आसिफ जादूगर से किस तरह लड़ सकता हूँ बाबा? एक तो वो आसिफ है, दूसरा जादूगर, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि बाजार जादूगर और शहजादी अक्काशा मुझे दिखाई नहीं देते।
मैं भला किस तरह उस जादूगर को हलाक कर सकता हूँ? शहजादा नूर बख्त ने हैरान होकर कहा। अगर आप तैयार हों तो इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ शहजादा हुजूर, शाही नजूमी ने कहा, और शहजादा नूर बख्त चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। अगर ऐसी बात है तब तो मैं जरूर शहजादी अक्काशा की मदद करूंगा बाबा। इसलिए नहीं कि मैं आसिफ की दुनिया के बादशाह से डर गया हूँ, बल्कि इसलिए कि बाजार जादूगर नाहक शहजादी अक्काशा पर जुल्म कर रहा है, और जालिम कोई भी हो मैं उसे जरूर हलाक कर दिया करता हूँ, शहजादा नूर बख्त ने कहा। और शाही नजूमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और वो स्लेटी से दोबारा हिसाब लगाने के बाद शहजादा नूर बख्त को बताने लगा कि वो किस तरह शहजादी अक्काशा और बाजार जादूगर तक पहुंच सकता है और किस तरह से बाजार जादूगर को हलाक किया जा सकता है। घोड़ा इंतहाई रफ्तार से दौड़ रहा था। शाही नजूमी से सारी तफसील जानने के बाद शहजादा नूर बख्त अगले ही दिन अपनी अजीबो गरीब मुहिम पर निकल खड़ा हुआ था। शाही नजूमी के कहने के मुताबिक शहजादा नूर बख्त को सबसे पहले सिहा पहाड़ियों के सिहा गार में जाना था, जहां सिहा रीछों का जोड़ा रहता था। उन रीछों को मारकर उनका खून किसी बोतल में डालकर उस आसिबी मकान में जाना था जहां शहजादा नूर बख्त ने पुरअसरार आवाजें सुनी थी। आसिबी मकान के खाली कमरे में उस खून से एक दायरा सा बनाना था। उस दायरे में सब्ज सुनहरी नाक की कटी हुई गर्दन रखना थी, जिसकी वजह से वहां एक सिहा रंग के कुएं का जाहिर होना था। उस कुएं में उतरने के लिए शहजादा नूर बख्त को एक नीले परिंदे की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो कुएं की तह में उतर सकता था। कुएं की तह में उतरकर वो उस रेगिस्तान में पहुंच जाता जहां से आसिफ दुनिया शुरू होती थी। शाही नजूमी ने बताया था कि आसिफ जादूगर शहजादी अक्काशा को लेकर वापस अपनी दुनिया में जा चुका है। उस जादूगर को मारने के लिए शहजादा नूर बख्त को सबसे पहले ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रागून बाबा से मिलना था। वही शहजादा नूर बख्त को उस जादूगर की हलाकत का राज बता सकते थे। रागून बाबा इंतहाई नेक बुजुर्ग थे। इस सिलसिले में वो यकीनन शहजादा नूर बख्त की बेपनाह मदद कर सकते थे, इसलिए शहजादा नूर बख्त का उनके पास जाना बेहद जरूरी था। शहजादा नूर बख्त सबसे पहले उन्हीं बुजुर्ग से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार ऊंची पहाड़ियों की जानिब चला जा रहा था। सारा दिन मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार वो ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने घोड़े को एक तरफ छोड़ा और खुद एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर एक झोंपड़ी दिखाई दे रही थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते शहजादा नूर बख्त बुरी तरह से थक गया था, मगर जब तक वो चोटी पर न पहुंच गया उसने उस वक्त तक दम न लिया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। शहजादा नूर बख्त उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी में एक पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग आंखें बंद किए खुदा की इबादत में मसरूफ थे। उनके सर, दाढ़ी और भौं के बाल दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहे थे। एक तरफ लकड़ियां जल रही थीं, जो शायद बुजुर्ग बाबा ने सर्दी से बचने के लिए जला रखी थी। बुजुर्ग बाबा मुसल्ले पर बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने मुसलसल हिल रहे थे। शहजादा नूर बख्त ने उनकी इबादत में दखल देना मुनासिब ना समझा और खामोश और एहतराम से एक तरफ जा बैठा। कुछ देर बाद बुजुर्ग बाबा ने इबादत खत्म की और आंखें खोल दी। उन्हें आंखें खोलता देखकर शहजादा नूर बख्त ने उन्हें अकीदत भरे अंदाज में सलाम किया, जिसका बुजुर्ग बाबा ने निहायत मोहब्बत से जवाब दिया। बाबा जी, मैं आपकी खिदमत में एक जरूरी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। शहजादा नूर बख्त ने चंद लम्हों बाद बुजुर्ग बाबा से मुखातिब होकर कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तुम आसिबी दुनिया में जाकर आसिफ शहजादी अक्काशा को बाजार जादूगर की कैद से रिहाई दिलाना चाहते हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी बात सुनकर शहजादा नूर बख्त हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि रागून बाबा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वो बाजार जादूगर को मारने के सिलसिले में यकीनन उसकी मदद करेंगे। इसलिए उसके चेहरे पर और दिल में बुजुर्ग बाबा के लिए और ज्यादा अकीदत उभर आई। अगर आप सब कुछ जानते हैं बाबा जी, तो फिर मुझे बताइए कि मैं आसिबी यानी बाजार जादूगर को किस तरह हलाक कर सकता हूँ, उसने पूछा। आसिब असल में जिन्नों और भूतों से एक अलग कौम होती है बेटा, और यह कौम जिन्नों भूतों से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है। उनका मुकाबला करना इंसानों की तो क्या जिन्नों भूतों के बस की भी बात नहीं होती। और बाजार आसिब होने के साथ साथ एक जादूगर भी है, इसलिए उसकी ताकत दूसरे आसिबों से कहीं ज्यादा और खौफनाक है। उसको मारने के लिए तुम्हें कई तकलीफ दह मराहिल से गुजरना पड़ेगा। शाही नजूमी ने तुम्हें जिन 3 मरहलों के बारे में बताया है, उनकी मदद से तुम सिर्फ आसिब दुनिया में जा सकते हो,
لیکن بازار جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک راستوں سے گزرنا ہوگا، جہاں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، بزرگ بابا نے بتایا۔ انسان اگر نیکی اور کسی اچھے کام کی غرض سے قدم اٹھائے تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں بابا۔ شہزادی عکاشہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، مگر وہ اس وقت مصیبت کا شکار ہے اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ کیا اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کریں گے؟ اور پھر موت تو ایک روز ہر کسی کو آنا ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت اسی طرح یعنی عاصبی دنیا میں ہی لکھی ہوئی ہے تو میں بھلا اسے کیسے ٹال سکتا ہوں؟ شہزادہ نور بخت نے کہا۔ بہت خوب، مجھے تمہارے خیالات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے شہزادے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بازار جیسے خطرناک جادوگر کو یقیناً ہلاک کر دو گے۔ بازار جادوگر عاصب دنیا کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے بھی بڑا ظالم اور خطرناک بنا ہوا ہے۔ وہ انسانی دنیا میں آ کر اکثر لوگوں کو ستاتا رہتا ہے۔ انسانوں کا خون پینا اس کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ ہے۔ بیٹا، اس جادوگر کا واقعی فنا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس جادوگر کی جان اس کے اپنے جسم میں ہی ہے، مگر عاصب ہونے کی وجہ سے اس پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پر آگ یا پانی کا اثر ہوتا ہے۔ اس جادوگر کو مارنے کے لیے تمہیں 4 مختلف درندوں کے تیز اور نوکیلے پنجے حاصل کرنا ہوں گے، جن میں ایک پنجہ سنہرے شیر کا ہوگا، ایک سیاہ چیتے کا، تیسرا پنجہ سرخ عقاب کا، چوتھا پنجہ نیلے چمگادڑ کا اور 5واں کسی انسان کا ناخن۔ ان سب پنجوں کا ایک ایک ناخن تمہیں اپنی انگلیوں کے سروں پر لگانا ہوگا۔ جب اپنا یہ پنجہ تم عاصب جادوگر کو مارو گے تب عاصب یعنی بازار جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ان درندوں کے پنجے کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ بابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر شہزادہ نور بخت کو بتانے لگے۔ پھر انہوں نے شہزادہ نور بخت کو ایک سفید نگینے والی انگوٹھی دی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح انہوں نے شہزادے کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگے، جب تک یہ تسبیح تمہارے گلے میں رہے گی اس وقت تک تم پر کسی عاصب کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور تم عاصبوں کو آسانی سے دیکھ بھی سکو گے، اور اس انگوٹھی کی مدد سے تم ان جگہوں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو جن جگہوں پر سے تمہیں سیاہ ریچھوں کے جوڑے کا خون، نیلا پرندہ، سبز سنہرے ناک کا پھن اور درندوں کے پنجوں کے ناخن حاصل کرنا ہے۔ 4 درندوں کے ناخن اور 5واں ناخن تمہارا اپنا ہوگا۔ ان سب درندوں کو ہلاک کرنا، ان کے پنجے حاصل کرنا، یہ سب تمہاری اپنی عقل، ذہانت اور بہادری پر منحصر ہوگا۔ جب تمہارا ہاتھ خونی پنجہ بن جائے گا تو تم اس عاصبی مکان کی طرف جانا، اور ہاں، یہ مٹی کے بنے ہوئے 2 شتر ہیں، انہیں بھی اپنے پاس رکھ لو۔ عاصبی دنیا میں سفر کے دوران یہ تمہارے کام آئیں گے۔ انہیں زمین پر رکھ کر کہنا زندہ ہو جاؤ تو یہ زندہ ہو کر اونٹ بن جائیں گے۔ بزرگ بابا نے یہ کہہ کر ایک طرف موجود صندوق سے مٹی کے بنے ہوئے 2 چھوٹے چھوٹے اونٹ شہزادے نور بخت کے حوالے کر دیے۔ شہزادہ نور بخت نے ان سے سب چیزیں لے کر احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھ لی۔ پھر بزرگ بابا نے شہزادے سے اس کی تلوار لی اور اس پر دم کر دیا۔ میں نے تمہاری تلوار پر دم کر دیا ہے، اب اس تلوار کو تم کسی فولادی چٹان پر بھی مارو گے تو وہ بھی کسی موم کی طرح کٹ جائے گی۔ بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادہ نور بخت بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے بزرگ بابا کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر اور انہیں سلام کرتا ہوا ان کی جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ بزرگ بابا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی مدد سے وہ آنکھیں بند کر کے دور دور کا سفر چند ہی لمحوں میں طے کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے گھوڑے کی پرواہ نہ کی جو وہ نیچے پہاڑیوں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ شہزادہ نور بخت نے انگوٹھی کے سفید نگینے کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی اور اس سے کہا، اے سفید نگینے والی انگوٹھی، مجھے سیاہ پہاڑ کے سیاہ غار تک پہنچا دے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادہ نور بخت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے ہوں اور وہ نہایت تیزی کے ساتھ ہوا کے دوش پر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر مسلسل اسی طرح اڑتے رہنے کے بعد شہزادہ نور بخت کے قدم دوبارہ زمین پر آ لگے۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک کالے سیاہ رنگ کے پہاڑ کے سامنے کھڑا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سارے کا سارا پہاڑ کوئلے کا بنا ہوا ہو۔ شہزادہ نور بخت کے بالکل سامنے ایک غار دکھائی دے رہا تھا۔ غار کا دہانہ خاصا چوڑا تھا۔ شہزادہ نور بخت نے بزرگ بابا کی دی ہوئی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں لے لی اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس کے پیچھے جیسے غار کا منہ بند ہو گیا ہو۔
اس کے ساتھ ہی شہزادہ نور بخت کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک دم اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو اور وہ اندھا ہو گیا ہو۔ شہزادہ نور بخت، تم اس وقت سیاہ پہاڑ کے سیاہ غار میں ہو، جہاں سیاہ ریچھوں کے بادشاہوں کا سب سے طاقتور جوڑا رہتا ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو ہلاک نہیں کرو گے، اس وقت تک تم غار سے نہیں نکل سکو گے۔ تمہارے لیے غار میں چند لمحوں کے لیے روشنی کی جا رہی ہے۔ روشنی میں تمہیں سیاہ ریچھوں کا جوڑا دکھائی دے گا جو تم پر حملہ کرے گا۔ تمہیں نہ صرف اس کے حملوں سے بچنا ہوگا بلکہ انہیں ہلاک بھی کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، روشنی کچھ دیر کے لیے ہی ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر تم روشنی ختم ہونے سے پہلے سیاہ ریچھوں کو ہلاک نہ کر سکے تو اندھیرا ہوتے ہی سیاہ ریچھ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ شہزادہ نور بخت کو ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور شہزادہ چونک پڑا۔ اسی وقت جیسے غار روشنی سے بھر گیا، ہر طرف تیز روشنی پھیلنے لگی۔ تیز روشنی میں شہزادہ نور بخت کو سامنے دو نہایت بڑے بڑے اور خوفناک ریچھ دکھائی دیے، جو روشنی ہوتے ہی نہایت خوفناک انداز میں چیخنے چلانے لگے تھے اور سامنے سے دوڑتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں شہزادہ نور بخت کی طرف آنے لگے۔ ان کے دانت اور ہاتھوں پیروں کے پنجے بے حد بڑے بڑے، نوکیلے اور خوفناک تھے۔ اس قدر بڑے اور خوفناک ریچھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادہ نور بخت بوکھلا گیا اور کئی قدم پیچھے ہٹایا، مگر پھر اچانک اسے جیسے کسی نے زور سے آگے دھکیل دیا ہو اور شہزادہ تیزی سے ان ریچھوں کے قریب آ گیا۔ ریچھوں نے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے اچانک نہایت جارحانہ انداز میں شہزادے پر حملہ کر دیا، مگر شہزادہ نور بخت تیزی سے نیچا ہو گیا اور اپنے جسم کو بل دیتا ہوا دائیں جانب گھوم گیا، ورنہ ریچھوں کے خوفناک پنجے اسے ایک لمحے میں بری طرح سے ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ جس تیزی سے شہزادہ دائیں جانب ہوا تھا، دونوں ریچھ بھی اسی طرف پلٹے تھے۔ ان کے منہ سے تیز اور دل دہلا دینے والی خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ اپنے تیز دھار پنجوں سے بار بار شہزادے پر حملہ کر رہے تھے، مگر شہزادہ ہر بار ان کے حملوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا۔ وہ بھی ریچھوں پر تلوار کی مدد سے حملہ کر رہا تھا، مگر تیز رفتار اور پھرتیلے ریچھوں میں سے وہ ابھی تک کسی ایک کو ہلاک کرنا تو ایک طرف رہا، ہلکا سا زخم بھی نہ لگا سکا۔ اور پھر شہزادہ نور بخت نے غار میں روشنی کم ہوتے ہوئے محسوس کی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بوکھلا گیا۔ اس نے ریچھوں پر تیز تیز حملے کرنا شروع کر دیے۔ ایک بار جو اس نے تلوار گھمائی تو ایک سردار ریچھ کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کے بے سر کا دھڑ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح سے ابل رہا تھا۔ سردار ریچھ کی گردن کٹتے دیکھ کر ریچھنی اور زیادہ غضبناک ہو گئی۔ اس کے حملوں اور گراہٹوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، مگر شہزادہ نور بخت نے چند ہی لمحوں میں اسے بھی ڈھیر کر ڈالا۔ دونوں ریچھوں کو ہلاک کر کے شہزادے نے اپنے لباس میں سے جلدی سے ایک بوتل نکالی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے دونوں ریچھوں کا ابلتا ہوا خون اس بوتل میں ڈال کر بوتل کا منہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک شہزادہ نور بخت وہیں سستاتا رہا۔ اس وقت تک غار کی روشنی بے حد کم ہو گئی تھی۔ تب شہزادہ نور بخت نے سبز سنہری ناک کے علاقے میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بزرگ بابا کی سفید نگینے والی انگوٹھی کی طرف دیکھا۔ اے سفید نگینے والی انگوٹھی، مجھے سبز سنہری ناک تک پہنچا دے، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت اسے جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے قدم دوبارہ زمین سے لگے تو اسے تیز اور خوفناک پھنکار کی آواز سنائی دی اور شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ ریچھوں جیسی ہی ایک غار میں موجود تھا اور اس کے سامنے ایک کئی فٹ لمبا اور موٹا ناگ موجود تھا جس پر سبز اور سنہری دھبے نظر آ رہے تھے۔ ناگ نے شہزادہ نور بخت کو دیکھتے ہی خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ پھن اٹھا کر اپنی لمبی اور دو شاخہ زبان نکال کر شہزادے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہزادہ نور بخت ہوشیاری اور نہایت پھرتی سے اس کے ڈنک سے خود کو بچا رہا تھا۔ پھر اس نے موقع پاتے ہی ناگ کی گردن اڑا دی۔ جیسے ہی ناگ کی گردن کٹی، ناگ کا بقایا جسم جل کر سیاہ ہو گیا۔ شہزادے نے ناگ کی کٹی ہوئی گردن ایک رومال میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اے سفید نگینے والی انگوٹھی، اب مجھے نیلے پرندے کے پاس لے چلو۔ ناگ کو مارنے کے بعد شہزادہ نور بخت نے سفید نگینے والی انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلے کی طرح جھٹکا لگا اور کچھ دیر ہوا کے دوش پر اڑتا رہا، پھر اس کے قدم زمین سے آ لگے۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو پھر ایک غار میں موجود پایا۔ اس غار میں چڑیا جتنا ایک نیلے رنگ کا عجیب و غریب پرندہ ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ شہزادہ نور بخت نے اس نیلے پرندے کو زندہ پکڑنا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کس طرح سے پکڑا جائے۔
चंद लम्हे सोचते रहने के बाद उसने अपने सर पर से टोपी उतारी और फिर उस टोपी की मदद से वो उस परिंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर परिंदा बेहद तेज और फुर्तीला था। वो गार में निहायत तेजी से इधर उधर चकराता उड़ रहा था। शहजादा नूरबख्त उसे झपट झपट कर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने करीब से गुजरते हुए परिंदे पर अपनी टोपी से झपटा मारा। दूसरे ही लम्हे नीला परिंदा उसकी टोपी में आ चुका था। शहजादा नूरबख्त ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे टोपी में ही रखकर टोपी सर पर डाल दी। अब वो आसिफ की दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर अभी उस बाजार जादूगर को हलाक करने के लिए 4 मुख्तलिफ दरिंदों के तेज नाखूनों की जरूरत थी। उसने वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा और सफेद नगीने वाली अंगूठी की मदद से सुनहरे शेर तक जा पहुंचा। सुनहरा शेर उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा, खौफनाक और खूंखार था। उसका सामना करते और उससे मुकाबला करते हुए शहजादा नूरबख्त को सचमुच दांतों पसीने आ गए, मगर बुजुर्ग बाबा की दी हुई तलवार की मदद से वो सुनहरे शेर को भी मारने में कामयाब हो गया। फिर उसने खंजर की मदद से सुनहरे शेर का एक नोकीला नाखून काट कर अपने पास रख लिया और सफेद नगीने वाली अंगूठी के जरिए स्याह चीते के जंगल में जा पहुंचा। स्याह चीते को मारकर और उसका नाखून काटकर वो अंगूठी की मदद से एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में सुर्ख अकाबों की बहुतात थी। शहजादा नूरबख्त ने खंजर को नोक से पकड़कर एक सुर्ख अकाब का निशाना लेकर खंजर उस पर खींच मारा। खंजर जनी का वो चौके माहिर था, फिर भला उसका निशाना क्यों कर चूक सकता था। दूसरे ही लम्हे सुर्ख रंग का एक अकाब खंजर में पिरोकर फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा और चंद ही लम्हों में तड़प तड़प कर हलाक हो गया। और शहजादा नूरबख्त ने उसके पंजे का भी एक नाखून उतार कर अपने पास रख लिया। इसी तरह शहजादा सफेद नगीने वाली अंगूठी के जरिए नीले चमगादड़ों के जंगल में पहुंचा और उसने खंजर मारकर एक चमगादड़ को भी मार गिराया और उसका भी नोकीला नाखून हासिल कर लिया। अब शहजादा नूरबख्त बाजार जादूगर को हलाक करने के लिए 4 नाखून हासिल कर चुका था। उसने बारीक डोरियों की मदद से नाखून अपनी उंगलियों के सिरों पर बांध लिए। ए सफेद नगीने वाली अंगूठी, अब मुझे आसेबी मकान में ले चलो। शहजादे ने 4 नाखून उंगलियों के सिरों से बांध लेने के बाद बुजुर्ग बाबा की दी हुई अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा और आंखें मूंद ली। उसे झटका लगा और उसके कदम जमीन से उठ गए। काफी देर मुसलसल उड़ते रहने के बाद जब उसके पैर जमीन से लगे तो उसने आंखें खोल दी। इस बार वो उस आसेबी मकान में मौजूद था जहां उसने रात के वक्त शहजादी अक्काशा और बाजार जादूगर की बातें सुनी थी। कमरा उसी तरह खुला हुआ और खाली था। शहजादे ने स्याह रीछों के खून से कमरे के वस्त में एक दायरा बनाया और दायरे के ऐन दरमियान में सब्ज सुनहरी धब्बों वाले नाक का कटा हुआ सर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन के उस हिस्से से एक बहुत बड़े कुएं का दहाना उभरकर बाहर आया। तब शहजादा नूरबख्त ने सर से टोपी थोड़ी सी उठाकर नीला परिंदा पकड़ा और उसकी टांगें पकड़कर कुएं के मुंह में छलांग लगा दी। चिड़िया नुमा परिंदा जोर जोर से पर मारने लगा और शहजादा नूरबख्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे कुएं में उतरता जा रहा था। कुएं में हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। शहजादा नूरबख्त काफी देर तक कुएं में नीले परिंदे की मदद से उतरता रहा। फिर उसके कदम कुएं की तह से जा लगे। जैसे ही उसके पैर जमीन से लगे एक जोरदार कड़ाका हुआ, तेज बिजलियां सी चमकी। दूसरे ही लम्हे यकलख्त तारीकी छट गई और शहजादा नूरबख्त ने खुद को एक बेआबो ग्याह रेगिस्तान में मौजूद पाया। रेगिस्तान बेहद बड़ा और वसीओ अरीज था। हर तरफ रेत ही रेत का समंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा था। आसमान पर सूरज चमक रहा था, जिसकी वजह से रेत तप रही थी और सूरज भी जैसे आग बरसाता हुआ मालूम हो रहा था। शहजादा नूरबख्त परेशान ज़दा नजरों से चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे और किस तरफ जाए। शहजादा नूरबख्त, तुम इस वक्त आसिफ दुनिया में हो। इस रेगिस्तान में चंद गज के फासले पर टीले के पीछे शहजादी अक्काशा बेहोश पड़ी हुई है। उसने बाजार जादूगर की कैद से भागने की कोशिश की थी और रेगिस्तान में गिरकर बेहोश हो गई। उसे होश में लाओ और मेरे दिए हुए तिलस्मी ऊंटों को जमीन पर डालकर जिंदा करो और उस पर बैठकर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उस रेगिस्तान से निकल जाओ। अचानक शहजादे को बुजुर्ग बाबा की आवाज सुनाई दी और शहजादा नूरबख्त बुरी तरह से चौंक पड़ा। करीब ही रेत का एक टीला था। शहजादा नूरबख्त तेजी से उस टीले पर चढ़कर दूसरी जानिब देखने लगा। उसे वाकई कुछ दूर सुर्ख कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा दिखाई दिया। शहजादा नूरबख्त तेजी से उस तरफ आ गया। उसने देखा सुर्ख कपड़ों में एक निहायत खौफनाक शक्ल वाली लड़की बेहोश गिरी पड़ी थी। शहजादा समझ गया कि ये जरूर आसिफ शहजादी अक्काशा है।
वो उसे होश में लाने की तरकीब सोचने लगा। फिर उसने शहजादी की नाक और मुंह पकड़कर जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे शहजादी अक्काशा का दम घुटने लगा और खौफनाक शक्ल वाली शहजादी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म से तो मुझे आदमजादों जैसी बू आ रही है। होश में आते ही शहजादी अक्काशा ने चौंक कर और बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। जवाब में शहजादा नूर बख्त ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात सुना दी, और ये जानकर कि शहजादा नूर बख्त ने उसकी जान बचाने के लिए इस कदर कठिन मंजिलें अबूर की हैं और वो किन मुश्किलों से गुजरकर उस तक पहुंचा है, वो हैरान रह गई और शहजादे का शुक्रिया अदा करने लगी। ये शुक्रिया अदा करने का वक्त नहीं है शहजादी साहिबा, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। अगर बाजार जादूगर यहाँ आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, मगर इससे पहले तुम अपनी शक्ल बदल लो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर खौफ आ रहा है। शहजादा नूर बख्त ने शहजादी अक्काशा से कहा और फिर बुजुर्ग बाबा के दिए हुए मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे ऊंट निकालकर जमीन पर रखने लगा। शहजादी अक्काशा ने एक लम्हे में अपना चेहरा तब्दील कर लिया था और अब वो एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, जो हैरानी से शहजादा नूर बख्त के मिट्टी के छोटे छोटे ऊंट देख रही थी। फिर जो ही शहजादी ने मिट्टी के ऊँटों को जिंदा होने का हुक्म दिया, मिट्टी के ऊँट तेजी से बड़े होते चले गए और फिर जैसे उनमें जान सी पड़ गई। दूसरे ही लम्हे उसके सामने दो जीते जागते ऊँट खड़े थे, जिन पर मुहार भी थी और उनके कोहानों पर सुर्ख और सब्ज रंगों के कपड़े भी थे। शहजादा नूर बख्त ने शहजादी अक्काशा को एक ऊँट पर बिठाया और दूसरे ऊँट पर खुद बैठ गया। दूसरे ही लम्हे ऊँट उन्हें लिए हुए तेजी से रेगिस्तान में दौड़ने लगे। शहजादा नूर बख्त का ऊँट आगे और शहजादी अक्काशा का उसके पीछे था। ऊँट निहायत तेजी से भागे जा रहे थे कि उसी वक्त आसमान पर एक कड़ाका हुआ। शहजादी ने आसमान का रंग गुलाबी होते देखा। ठीक उसी लम्हे उसने शहजादी अक्काशा के पीछे आसमान पर एक फटी फटी आंखों वाला सुर्ख रंग का एक भयानक खौफनाक चेहरा नमूदार होते देखा। ये देखकर शहजादे नूर बख्त ने जल्दी से अपनी म्यान से तलवार खींच ली। रुक जाओ आदमजाद, शहजादी अक्काशा को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा, खौफनाक चेहरे वाले जादूगर ने कड़क कर कहा। उसकी आवाज सुनकर शहजादी अक्काशा बौखला गई और खौफजदा अंदाज में चीखते हुए ऊँट की रस्सी जोर से खींचने लगी। रुक जाओ आदमजाद, मैं कहता हूँ रुक जाओ, बाजार जादूगर खौफनाक अंदाज में गरजा। उसी वक्त उसके मुंह से आग के शोले निकले और रेत पर पड़े। दूसरे ही लम्हे रेत अंगारों की तरह सुर्ख होती चली गई। घबराओ नहीं शहजादी अक्काशा, हम इस वक्त इन ऊँटों पर महफूज हैं, बाजार जादूगर का कोई जादू हम पर असर नहीं कर सकता। शहजादा नूर बख्त ने चीखकर शहजादी अक्काशा से कहा, मगर रेत को सुर्ख होते देखकर शहजादी अक्काशा बुरी तरह से चीख रही थी। बाजार जादूगर के मुंह से मुसलसल आग के शोले निकल रहे थे और रेगिस्तान तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। और फिर अचानक पूरे रेगिस्तान में आग भड़क उठी और बड़े बड़े शोले निकलने लगे। आग के शोलों में ऊँट शहजादी अक्काशा और शहजादा नूर बख्त को लिए तेजी से भागे जा रहे थे, मगर उस आग का उन पर जर्रा भर भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर बाजार जादूगर हैरान रह गया। उसने मुंह से आग उगलना बंद कर दी और चंद लम्हों के बाद रेगिस्तान भी अपनी असल हालत में आ गया। बाजार जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो रेगिस्तान में एक निहायत कवी हेकल और खौफनाक शेर नमूदार हुआ और बुरी तरह से दहाड़ने लगा। उसके दांत और पंजे बेहद लंबे और नोकीले थे और शेर भूरे रंग का था। जादुई शेर, शहजादी और शहजादे को ऊँटों समेत चीर फाड़ डालो, इन पर मेरा कोई जादू असर नहीं कर रहा, बाजार जादूगर ने चीखकर कहा और शेर खौफनाक अंदाज में दहाड़ता हुआ ऊँटों की जानिब दौड़ा। शहजादा नूर बख्त तो ना घबराया, अलबत्ता शहजादी अक्काशा ने डर कर अपनी टांगें जरूर ऊंची कर ली थी। हालांकि शेर दहाड़ता हुआ और निहायत तेजी से छलांगे लगाता हुआ शहजादा नूर बख्त की जानिब आ रहा था और फिर शेर भागते हुए ऊँट के साथ तेजी से भागने लगा। शहजादे ने ऊँट की महार एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। जो ही शेर ने शहजादे पर छलांग लगाई, शहजादा नूर बख्त का तलवार वाला हाथ पूरी कुव्वत से घूम गया और दूसरे ही लम्हे शेर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और वो रेत पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर एक धमाका सा हुआ और शेर का धड़ और उसकी गर्दन भक से जलकर राख हो गए। ये देखकर बाजार जादूगर सख्त गजबनाक हो गया। उसने कोई मंत्र पढ़ा और जिस्म के साथ नमूदार होकर जमीन पर उतर आया। उसे जमीन पर आते देखकर शहजादे ने अपना ऊँट रोक लिया और छलांग लगाकर नीचे उतर आया। मैं जानता हूँ शहजादे कि जादू के जोर से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं आसिब हूँ और मेरे जिस्म में बेपनाह ताकत मौजूद है।
आओ मेरा मुकाबला करो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन ना तोड़ दी तो कहना। बाजार जादूगर ने चीख कर कहा। शहजादा नूर बख्त उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने तलवार अपनी म्यान में डाल ली और बाजार जादूगर के मुकाबले में आ गया और फिर दोनों में जोरदार जंग शुरू हो गई। बाजार जादूगर के बदन में वाकई बिजलियां भरी हुई थी। वो निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर हमले कर रहा था, मगर शहजादा नूर बख्त भी लड़ाई भिड़ाई में माहिर था। उसने जमकर बाजार जादूगर का मुकाबला किया और मौका मिलते ही तेज नाखूनों वाला पंजा उसके सीने पर मार दिया। बाजार जादूगर का जिस्म तेज पंजों से चिरता चला गया और उसका दिल शहजादा नूर बख्त के हाथ में आ गया। शहजादे ने अपने पंजे के तेज नाखूनों से बाजार जादूगर का दिल भी चीर डाला। बाजार जादूगर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाता हुआ उलटकर गिर पड़ा। उसके जख्मों पर आग सी भड़की और फिर उस आग ने उसे एक लम्हे में जलाकर राख कर दिया। उस वक्त तक शहजादी अक्काशा भी अपना ऊंट रोक चुकी थी। बाजार जादूगर को हलाक होते देखकर खुशी से चीख उठी और भागकर शहजादे के करीब आ गई। तुम बहुत बहादुर और नेकदिल इंसान हो आदमजाद शहजादे। तुमने बाजार जादूगर जैसे आसिफ जादूगर को मारकर मुझ पर और मेरे शहजादे जान जबूट पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब शहजादा जान जबूट की जिंदगी महफूज हो चुकी है। मैं शहजादे को सुनहरे बुत से दोबारा आसिफ शहजादा बनाकर अपने मुल्क ले जाऊंगी। अब हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे, हमें कोई डर कोई खौफ नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नेकदिल आदमजाद, इसके लिए मैं तुम्हारा जिस कदर भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आओ मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं। मेरे बाबा और शहजादा जान जबूट तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। शहजादी अक्काशा ने खुश होते हुए कहा और शहजादा मुस्कुरा दिया। नहीं अच्छी शहजादी, मेरा मकसद तुम्हें बाजार जादूगर को मारकर उसके जुल्म से निजात दिलाना था, सो वो मैं तुम्हें दिला चुका हूँ। अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। हो सकता है तुम्हारी तरह किसी और मजलूम को मेरी जरूरत हो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जुल्म का खात्मा है, जो मैं करता रहूंगा, शहजादी ने कहा। शहजादी अक्काशा ने उसे बहुत रोकना चाहा, मगर शहजादा ना माना और बुजुर्ग बाबा की सफेद नगीने वाली अंगूठी की मदद से वहां से गायब होकर वापस अपनी दुनिया में आ गया। ये वही पहाड़ी इलाका था जहां उसने अपना घोड़ा छोड़ा था। चंद ही लम्हों में वो अपने घोड़े पर सवार अपने महल की तरफ वापस जा रहा था। वो खुश था कि उसने आसिबी दुनिया की ही सही मगर एक मजलूम शहजादी की जालिम जादूगर से जान तो बचा ली और खतरनाक और जालिम जादूगर को हलाक कर दिया। बुजुर्ग बाबा की करामाती चीजें उसके पास थीं, जिनसे वो आइंदा भी मदद लेकर मजलूमों की मदद कर सकता था। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।